सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मिस्टर स्टडी बॉट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश। यस, आपने सही सुना। इंग्लिश को कैसे पढ़े, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए इंग्लिश की, वो हम सीखने वाले हैं आज। वैसे इंग्लिश का नाम सुन लिया आपके मन में विचार आया होगा, इंग्लिश तो बहुत आसान है, आराम से हो जाता है। पर नहीं, आप गलत हो। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। So the first section in English is the prose section. Uh, there are total 6 lessons out of 8. The fifth and the seventh one are cut. I have divided this 6 lessons into 4 categories. First is story mode, which is like a normal story mode. In this story mode include first, second, and third. Then there's come GK. GK is nothing to do with it. It just you will have to rote learning it. Rote learning. Then the third category is autobiography. Yes, you will also have to memorize it. It's not whole autobiography, it's just an some sort of, yeah. And the fourth is article. Article is basically here there are 2 articles in this lesson, Into the Wild 1.6. So you will have to read them all. So how to improve your prose section? Here are some steps to improve your prose section. First, read the text or whole lesson carefully and box the hard words and underline the lines whichever you feel it's important. Yes, it's the most important key point here. You will have to box the hard words and underline whichever you will feel important. Okay, so this step is means when you're reading for the first time, do this step. Then again read the text and make pieces of that lesson again, underline some new words or just read underline sentences. Okay, when you will be reading the second time the particular chapter, particular lesson, so make pieces and underline something new or just read whatever you are underline. Then the third step is make a mind map of the whole chapter. Yes, this is the most important thing. After reading the whole lesson you will have to make a mind map of the whole chapter. So mind map is where when you will be drawing mind map, you will be getting the whole idea of the chapter, so it becomes easy to understand and recall before the exam. Now the fourth step is now try to solve brainstorming exercise without seeing the answers. Try to find it on your own. Yes, here are things to be noted in the prose. After following these steps, that is 3x, means you read the 3x 3 times reading plus 1 time exercise, which is equals to 4x. So you revise that particular lesson for the 4 times. Yes, 4 बार आपने वो लेसन रीड किया है। आप सोच नहीं सकते आपका वो लेसन कितना अच्छे से पक्का हो गया होगा। While following these steps, you will face some difficulties at starting, so don't panic, keep going. Yes, it's right. It's absolutely right. Solve the exercise in your notebook and show it to your teacher. एक्सरसाइज अपने आप से सॉल्व करना है, अपने आप से आंसर्स लिखने हैं। आपको जो भी समझा है वो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आंसर लिखना है, और फिर वो आंसर आपके टीचर को बताना है आपको, और आपके टीचर से चेक करवाना है। अगर समझो अगर कोई मतलब भी नॉन टीचिंग के कॉलेजेस रहते हैं, जैसे मतलब उधर सिर्फ नहीं गए तो भी चलते हैं, वैसे कॉलेजेस में अगर टीचर्स नहीं रहते बहुत बार, तो आप मुझे भी जीमेल पे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो हम चलते दूसरे सेक्शन की तरफ। दूसरा सेक्शन है पोइट्री सेक्शन। इसमें भी 6 पोएम्स है 8 में से। वो लास्ट के 2 शी वॉक्स इन ब्यूटी और 8 स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, ये 2 कट है। So basically here are the steps to improve your prose section.
Okay, step 1. Read the whole poem, underline main lines, box hard words, and write their meanings on top of the page. Yes, एज यूजुअल पहले भी हमने यही किया था, पूरा रीड किया था, अंडरलाइन किया था, हार्ड वर्ड्स को बॉक्स किया था। फिर इसके बाद में सेकंड स्टेप, ट्राई टू गेट मीनिंग ऑफ दोज लाइन्स व्हाट द पोएट वांट्स यू टू कन्वे। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको मीनिंग वो लाइन का समझना पड़ेगा। कई बार फिगर ऑफ स्पीच की वजह से भी मीनिंग डिफर हो सकता है, तो आप उसका भी ध्यान रखिएगा। थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाई एवरी लाइन्स फिगर ऑफ स्पीच। हाँ, ये आपके टेक्स्ट बुक में ही आप जब पोएम रीड कर रहे होगे तो फिगर ऑफ स्पीचेस के साइड में आपको मतलब एवरी लाइन के फिगर ऑफ स्पीचेस आपको लिखने हैं। एट लास्ट ट्राई टू अटेम्प्ट एप्रिसिएशन ऑफ पोएम ऑन योर ओन। हाँ, ये तो मेरा फेवरेट है भाई, मैं तो इसको अटेम्प्ट करता हूँ। पॉइंट वाइज फॉर्मेट में पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, और फिर उसके बाद में पैराग्राफ फॉर्मेट में। और आप जब क्वेश्चन मतलब फाइनल में जब लिखोगे इसका आंसर एप्रिसिएशन ऑफ पोएम का, तो उधर आपको मेंशन किया जाएगा कि पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है कि पैराग्राफ फॉर्मेट में। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। थिंग्स टू बी नोटेड इन पोएट्री। यस, आफ्टर फॉलोइंग these steps, first you are able if you are unable to understand poem, please go for meaning of every stanzas। हाँ, ये सही है। आप गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हो, गूगल पे भी बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे इन लाइंस का मीनिंग दिया होगा। when all the poem is set, just read the appreciation of poem, introduction box and summary if available। हाँ, अब पूरी पोएम रीड होने जाने के बाद, पूरा से सॉल्व करने के बाद, आप जब उसको फाइनल टाइम पे जब रिवाइज करोगे तब उसका एप्रिसिएशन रीड कर लेना, इंट्रोडक्शन बॉक्स रीड कर लेना, और बस हो गया। अगर समरी दिया होगा तो समरी भी रीड कर सकते हो आप। नोट, इधर एक अनाउंसमेंट एक नोटिस है, देयर विल बी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू क्रिएट ए पोएट्री अबाउट 4 लाइन्स 2 मार्क। हाँ, इस बार हमारी जब सेमेस्टर की एग्जाम्स हुई थी अभी पिछले महीने, तब हमें ये क्वेश्चन डाला गया था, और इसमें टॉपिक जो रहते हैं वो टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक के जो लेसन से या फिर जो भी पोएम से वगैरह वगैरह जो भी है, टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड टॉपिक आएगा, और उसके ऊपर ही हमको पोएम बनानी है। और इधर ऐसा मतलब इन्होंने पहले पहले ऐसे ही टॉपिक दिया था, और टॉपिक पे मतलब कोई भी राइम स्कीम चल रही थी, कोई भी टोन चल रही, कोई भी फिगर ऑफ स्पीच चलता था। पर नहीं, इस बार अभी चेंज कर दिया। इस बार बोला है उन्होंने, वो स्पेसिफिक करके देंगे आपको राइम स्कीम क्या है, जैसे ए बी बी या फिर ए बी सी डी, ऐसे वो मेंशन करेगी। फिर फिगर ऑफ स्पीच भी मेंशन करेंगे, टोन भी वगैरह वगैरह, वो सब मेंशन रहेगा, और उसके हिसाब से वो टॉपिक के ऊपर आपको पोएम बनानी है 4 लाइन्स की, विच इज फॉर 2 मार्क्स। भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी यार, ये 2 मार्क्स क्या फोकट में थोड़ी जाने देगी यार अपन, फोकट के मार्क्स है ये दो, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी चलो थर्ड सेक्शन पे आते हैं। थर्ड सेक्शन है राइटिंग स्किल्स। अभी मेरे पास इन सब के फॉर्मेट्स है, और या, मेरे पास इन सब के फॉर्मेट्स है, और आपको अगर आप राइटिंग स्किल इससे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब आप जब भी, जैसे जैसे कि मैंने आपको बोला था कि माइंड मैप बनाना, कि पूरा चैप्टर रीड होने के बाद, पूरा लेसन रीड होने के बाद, तो आप इधर माइंड मैप बना सकते हो, मतलब माइंड मैप की उधर प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद में नोट मेकिंग जो रहता है वो भी आसान है। फिर समरी राइटिंग जो है, वो समरी राइटिंग का मतलब रहता है कि बड़े से पैराग्राफ को आप 2-3 लाइनों में कैसे समझा सकते हो, उसको समरी राइटिंग बोलते हैं। अब उसमें ध्यान रखना कि एग्जाम्पल वगैरह या फिर जो भी आजू बाजू की चीज़ें वो ज़्यादा डालना मत। और आप जब भी समरी राइटिंग करते हो ना, तब ये मत ध्यान दिया करो कि हाँ मैंने 5 लाइन का लिखा है तो हाँ मेरे को 5 मार्क मिल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं रहता है। आपको मीनिंगफुली वो लाइन्स को फ्रेम करना पड़ेगा, और जो जो मेन मेन लाइन्स है उसको एक्सप्रेस करके आपको लिखना पड़ेगा। आप ऐसे ही कौन से भी वो पैसेज में के लाइंस उड़ा के
उसको समरी 2-3 लाइन 2-3 सेंटेंसेस में ख़त्म नहीं कर सकते। उसको कुछ मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर चौथा है इधर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये जब अपन इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये लगता है, हम सबके लिए लगता ही है। मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक्चुअली आप मैं उसका फॉर्मेट आपको दे दूंगा। फॉर्मेट आपको पीडीएफ मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिफ्थ है ड्राफ्टिंग ए वर्चुअल मैसेज। हाँ, ये भी सही है। अगर इधर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक कन्वर्जेशन दिया रहेगा 2 जनों का या फिर 3 जनों का, और उधर एक मैसेज जो रहता है वो उसके हिसाब से, वो कन्वर्जेशन के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। फिर सिक्स्थ है ग्रुप डिस्कशन। मेरे को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, अगर आप लोगों के पास होगा तो आप प्लीज़ मेरे को ज़रूर शेयर करिएगा। फिर अब आते हैं चौथे सेक्शन पे। चौथा सेक्शन है ड्रामा सेक्शन। अब इसमें भी इसके 3 ड्रामाज है, और एक जो पहला जो है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, वो बेसिक नॉलेज है। अभी ये चौथा सेक्शन के बारे में एक चीज़ जान लो। इसमें इसमें के जो भी है, ये टू सॉर विथ लव, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, द साइन ऑफ 4, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, ये चारों में से आपको किसी का भी पैसेज नहीं आने वाला, कुछ भी हिंट आपको नहीं दिया जाएगा। आपको खुद उस इन चारों के चारों को रोट लर्निंग करके ही जाना है। मतलब वो पूरा चैप्टर समझ के ही जाना है। चैप्टर में के जो भी मेन मेन पॉइंट से, मेन मेन कीवर्ड से, जैसे कि अभी टू सर विथ लव में अभी इनका जो स्कूल है तो ग्रीन स्लेट ऐसा कुछ नाम है उनका। हाँ, ग्रीन स्लेट स्कूल इन लंदन ईस्ट एंड। तो इसमें भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, वो आपको सभी को रीड करके ही जाना है। और हिस्ट्री ऑफ नावेल, इसका तो बाप रे, ये तो करना ही है। तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज डू शेयर, डू सब्सक्राइब, and hit the bell icon, and share this with as many as friends as you can। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।